Okay. All of you can see the presentation now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, in continuation with our yesterday's class about memory, I would like to explain one topic which we actually discussed yesterday, but today I have put it in detail here. ठीक है? So, it is about working memory model. जो हम कल बात कर रहे थे about that cognitive function, executive functioning and all other functioning. तो उसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं and there is one more component in it, उसको भी हम discuss कर लेते हैं. So, as we have already discussed, I guess we can come to this model. You can see this model firstly. It is very simple to understand. Whenever there is some input or information, any kind of information, it will enter our sensory memory. We know that, right? Sensory memory is that shortest spine. मतलब वहां से जल्दी से चीजें lost हो जाती हैं. And whenever we attend something, we attend some knowledge in this area, then only it will enter our working memory. Okay? जिसको हम वहां पे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी डिस्कस कर रहे थे. सो वो फिर वर्किंग मेमोरी जोन में जाती है वेयर वी हैव आवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कि एक्चुअल प्लानर है. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर. इट हैज वन कंपोनेंट कॉल्ड विजुअल स्पेशल स्क्रैच पैड जो विजुअल इंफॉर्मेशन उसको देगा पूरी सराउंडिंग जो स्पेशल स्पेस इंफॉर्मेशन होती है वो भी देगा. देन फोनोलॉजिकल लूप रिलेटेड टू ऑडिशन. आर्टिकुलेटरी कंट्रोल यानी कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, स्पीच कंट्रोल. तो दिस इज द होल फोनोलॉजिकल स्टोर. वहां से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली इनको मिलती है. एंड इवन द बैकअप, द लॉन्ग टर्म मेमोरी वी हैव, द पास्ट एक्सपीरियंसेस वी हैव, ये दिस आल्सो लाइक बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव while analyzing the recent information. Okay, this is the main central head. Okay, so this was all. ये याद है सबको, ये क्लियर है? हेलो. यस मैम, जो आपने कल वाली क्लास में जो कराया था वो क्लियर हो गया था. Okay, okay. So central executive is the main principal component of information processing dimension of working memory. So by undertaking many cognitive functions, सारे cognitive function, even the metacognitive function, वो सब that central executive is taking. ठीक है? So it gives the working memory the role of manager or central coordinator of all the metacognitive processes. If we use it strategically, limited working memory जो capacity है उसको, and we can even reprocess the information from long term memory. जैसे मैंने बोला, हम unconsciously पुराने information को भी recall करते हैं through this and अपने experiences को याद करते हैं to make sense of the current experiences. It also combines auditory as well as verbal phonological information and visual spatial information. तो सारी information को ये combine करके it try to take meaning out of it. Okay. Then it has one more part which was added later on in 2000. Bedley added fourth component, that is episodic buffer. तो यहाँ पर एक episodic buffer भी होता है. This is the third, मतलब fourth component add किया गया था. Now what is that buffer is doing? It is basically in trying, helping to integrate all the information. ठीक है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन आती है, बट दिस एपिसोडिक बफर विल इंक्लूड एवरीथिंग. लाइक इट विल इंटीग्रेट दिस विजुअल वाला, इट विल इंटीग्रेट दिस ऑडिशन वाला जो मेमोरी आ रहा है हमारा, सारी नॉलेज, इवन जो लॉन्ग टर्म से आपके पास मेमोरी है पास्ट में, उसको भी इंटीग्रेट करेगा. प्लस इसका नाम क्या, एपिसोडिक, वो सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंटीग्रेट करता है. ठीक है? तो इट क्रिएट एपिसोड्स, इवेंट्स, 1 2 3 4 कैसे चीजें हो रही है, सीक्वेंस में लगाता है चीजों को. ओके, सो इट इज द integrated unit of visual spatial verbal information with time sequencing or chronological ordering.
okay, such as the memory of a story or a movie scene. So it assumed to have links to long-term memory and even semantic meaning. So it also take out meaning of out of everything by integrating all the information, and again the another function is about having everything in a chronological order. So this was the fourth component. Is it clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now I am moving to this only. Okay, so this जो हम बात कर रहे थे अभी, the components of working memory model, उसमें central executive is associated with the prefrontal cortex, क्योंकि सारी planning हम यहीं से कर रहे हैं. All the metacognitive functions are being found here only. Then episodic buffer is associated with parietal lobe, ठीक है, the perceptual processing. Okay, and then the phonological loop is associated with Broca's and Wernicke's area. This we have studied ना bio की क्लास में. तो वहां पे phonological loop, speech से related, सुनने से related, ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी. And then visuospatial sketchpad is associated with occipital lobe. Fine. Yes, ma'am. This we have already discussed. Now we have one topic related to measurement of memory, how memory can be measured. So there are few mechanisms, few processes. First is recall. We have discussed about it already, recall के बारे में. तो अगर हमें किसी की memory check करनी है तो हम recall कराते हैं, ठीक है. If I ask you कि आपने again what did you study in the previous class? So I am trying to make you recall. आई एम चेकिंग योर मेमोरी है, ठीक है. एंड इट कैन बी फ्री रिकॉल, सीरियल रिकॉल यानी कि सीक्वेंस में, और क्यू डिपेंडेंट यानी कि जब मैं कोई हिंट दे रही हूँ आपको और तब आपसे बात कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, राइट. सो दैट वाज रिकॉल. देन वी हैव रिकॉग्निशन आल्सो. दिस अगेन वी नो, whenever you have MCQs in your paper and you have to select one option, that is recognition, right. And percent of recognition कैसे निकलता है? The questions you have answered right subtracted by you have answered wrong, n is total number of options available or words available into 100. I mean, this is the basic percentage formula, so that can give you percentage recognition. This method is generally known to be more sensitive method. Is it fine? मैम ये मैम, W जो है हम्म? ये रॉन्ग आंसर है ना? हाँ, ओके मैम. ठीक है. मैम इस और हाँ, रिकॉल क्या R माइनस W में R क्या है? आर इज राइट. राइट आपने आंसर चूज किया, यानी कि राइट रिकॉल किया एक तरीके से. ओके मैम. ठीक है, पहचान लिया, आंसर सही. एमसीक्यू में अगर सही टिक लगाया है आपने, दैट इज राइट ना. यस मैम. ठीक है, बस इसकी एक ही लिमिटेशन है, कभी कभी हम गेसिंग से भी स्कोर बढ़ा सकते हैं. यस मैम. ठीक है. Then we have another method, it can be reconstruction. So when we try to restore a sequence of a story or something, some event, मतलब हम कभी कभी चीजें भूल जाते हैं, बट हमें बिट्स एंड पीसेस में चीजें याद होती हैं, ठीक है. और एट दैट टाइम व्हाट वी डू, हम ना उस चीज को जोड़ तोड़ के वी ट्राई टू मेक मीनिंग आउट ऑफ इट, वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द होल थिंग, ठीक है. तो दैट इज वन ऑफ द मेथड. देन एंटिसिपेटिंग और प्रॉम्प्टिंग मेथड. इसमें ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं या प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, हम सामने से ही आपको होता है ना कि लिस्ट दिखा रहे हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड गेस कर पाए, मतलब प्रॉपर हिंट दे रहे हैं, ठीक है, विच कैन बी द आंसर. तो दिस मेथड इज लीस्ट सेंसिटिव. ओके. देन वी हैव सेविंग स्कोर्स. Saving score. This method was again given by Ebbinghaus
जिनको हम फॉरगेटिंग के साथ भी पढ़ते हैं। इसी मेथड को हम रीलर्निंग भी बोलते हैं, एट टाइम्स रीलर्निंग वर्ड भी यूज किया जाता है। एंड इट हैज दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को या तो परसेंटेज सेव्ड लर्निंग या सेविंग स्कोर बोलेंगे, या फिर रीलर्निंग का फॉर्मूला भी हम इसी को बोलते हैं। एंड व्हाट दिस फॉर्मूला सेज, OLT इज नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ट्रायल्स की बात हो रही है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल फॉर लर्निंग, कितने आपने ट्रायल्स लिए थे याद करने में। RLT इज रीलर्निंग, रीलर्निंग ट्रायल। रीलर्निंग में आपने कितने ट्रायल्स लिए, ठीक है। एंड देन दिस अपॉन टोटल इनटू 100। आपने टोटल ट्रायल्स कितने लिए थे किसी चीज को याद करने के, रीलर्निंग में कितने ट्रायल्स लिए थे, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए इसको निकालने के लिए। एंड फॉर्मूला इज, आप रीलर्निंग का परसेंटेज निकालोगे और उसको टोटल जो आपने लर्निंग के वक्त जो ट्रायल लिए थे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यू विल गेट योर सेविंग स्कोर और रीलर्निंग स्कोर, कि रीलर्निंग कितना लिया आपने टाइम। ठीक है, रीलर्निंग पे कितनी चीजें याद रह गई आपको, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका परसेंटेज। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Then you have retention. Retention is very simple again. कितना आपको रिटेन कर पाए हो किसी चीज को, इट इज डायरेक्टली दैट रिटेंशन। एंड प्राइमिंग इज क्वाइट सिमिलर टू, थोड़ा सा ये प्रॉम्प्टिंग से थोड़ा सा सिमिलर है, बिकॉज प्राइमिंग में हम थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। होता है ना, बच्चों को पोएम याद नहीं आ रही है तो हमने शुरू कर दी, वो हमने ABCD बोला, बाकी सारा उन्होंने खुद बोल दिया, तो वी जस्ट प्राइम देम एट टाइम्स, ताकि वो इम्प्लिसिट में से जो मेमोरी है, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, वो इजीली रिट्रीव हो पाए। तो कभी कभी हमें कुछ प्राइम मिलता है तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी में जो चीजें चली जाती है वो इजीली रिट्रीव हो पाती है। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Okay. Now we'll start with the topic of forgetting. Okay. So in generally we all are aware of forgetting, है ना। सिंपल सी भाषा में जब हम कुछ भूल जाते हैं हम उसको forgetting बोलते हैं, राइट। अब टेक्निकल भाषा में जब हम बात करें, वी हैव अंडरस्टूड मेमोरी टेक्निकली, कि कैसे इंफॉर्मेशन सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जाती है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाती है, राइट। तो फॉरगेटिंग का मतलब भी यही हो गया, जब आप किसी चीज को भूल रहे हैं, वेदर इट इज इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एट टाइम्स वी ट्राई टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, बट वी आर नॉट बीइंग एबल टू। पढ़ के गए हैं, एग्जाम में भूल गए हैं क्या पढ़ा था, ठीक है, तो वो हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज बीइंग लॉस्ट, भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन एनकोड हुई थी, स्टोर हुई थी, अगर हम उसको वापस रिट्रीव बैक नहीं करते हैं, कर नहीं पाते हैं, या करना भी नहीं चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली भी हमारी जो मेमोरी होती है वो डीके होने लगती है, लॉस्ट होने लगती है। हमें अपने बचपन की सारी बातें याद नहीं रहती है, इट ग्रेजुअली फेड्स अवे। Okay, so Hermann Ebbinghaus, he was the first one who studied about this forgetting, and he tested his memory. अपनी ही memory उन्होंने खुद टेस्ट करी थी using 3-letter nonsense syllables. आपके प्रैक्टिकल्स करें ना साइकोलॉजी में, नॉनसेंस सिलेबल्स, मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल किया है आपने, उसमें नॉनसेंस सिलेबल्स यूज करते हैं। नॉनसेंस सिलेबल्स मींस जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यस Like, मैम, है ना? उसमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता, उनको 1 मिनट में कुछ टाइमिंग दे दी Right. जाती है कि इनको जैसे मैंने मेमोरी करो। राइट जैसे मैंने ये लिख दिया वर्ड, दिस इज नॉनसेंस, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू यू, राइट, बट स्टिल इट इज अ सिलेबल। तो ऐसे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनेगी, ठीक है, और उसको यूज किया उन्होंने मेमोरीज के प्रोसेस, फॉरगेटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए, कि नॉनसेंस सिलेबल की लिस्ट है, उसको कितना वो याद रख पा रहे हैं, कितना आंसर दे पा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरफेरेंस भी चेक किया, अगर मैं इसमें कोई इंटरफेरेंस दे रहा हूँ तो उनकी फॉरगेटिंग अच्छी हो रही है, मतलब टाइम लग रहा है, कि क्या इंटरफेरेंस हो रहा है मेमोरी क्रिएट होने में, या फॉरगेटिंग ज्यादा हो रही है। इस तरीके से उन्होंने
रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके चेक किए थे चीजें. आई गेस ही गेव 13 नॉनसेंस सिलेबस, 13 नॉनसेंस सिलेबस उन्होंने दिए थे. ओके. मैम सीबीसी थे ना वर्ड, हाँ सीबीसी वो हाँ वर्ड, हाँ सीबीसी कॉन्सोनेंट, वोवेल्स कॉन्सोनेंट, हाँ ऐसे करके. हाँ 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 राइट. पूरा हम प्रैक्टिकल करते हैं ना साइकोलॉजी में इसका. आई गेस पूरा एक्सपेरिमेंट होता है एक मेमोरी वाला. Yes, ma'am. ओके. ओके. एंड उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस इसलिए यूज करे थे क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है. तो देर इज नो इंटरफेरेंस, कंट्रोल लगाने के लिए एक तरीके से ना. अदरवाइज जिन चीजों का हमें बारे में हमें पता होता है ना, वहां पे हमारी मेमोरी इंटरफेयर करती है. हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज और मेमोरी एसोसिएशन इंटरफेयर करते हैं. बट नॉनसेंस सिलेबस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए उन्होंने ये यूज किए थे. Then this was one of the experiment done by Nickerson and Adam. Nickerson and Adam ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था. कुछ नहीं है वो, they were just like they gave ये पेनीज का पिक्चर्स दिखाया था and they asked participant to choose इसमें से the real one, कौन सा पेनी एकदम सही वाला है. ठीक है, यही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था उनका. 1979 में they conducted. They have these 15 drawings and the people were asked to identify the correct penny design. Over 40% choose it correctly. So this was मतलब just the beginning of these concepts of memory and forgetting. और देख रहे थे कि क्या क्या रोल प्ले होता है, किन किन चीजों का रोल प्ले होता है आपके इस मेमोरी में या फॉरगेटिंग में. तो मतलब इसमें ये देखा गया कि लोगों को मुश्किल हुई. मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई कॉइन्स तो बहुत सिंपली उनके पास अवेलेबल होते हैं या उनको पता होता है, डे टू डे लाइफ में वो यूज करते हैं इन कॉइन्स को. बट स्टिल पीपल फाइंड डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग विच इज द रियल वन. ठीक है, तो जो सिमिलैरिटी हम क्रिएट करते हैं एट टाइम्स, सिमिलर चीजों में भी हमारी मेमोरी कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट होने लगती है कि भाई सही कौन सा था. ओके. So this is one of that. Then this is Ebbinghaus forgetting curve. Okay, so according to him, with the time, ठीक है, as the days pass, with the time we tend to forget things. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा रिटेंशन, you can see, हमारा रिटेंशन कम होने लगता है. So this is the curve given by Ebbinghaus. So we get this kind of curve. Okay, जैसे जैसे टाइम कम होगा आपका रिटेंशन ग्रेजुअली कम होगा. ओके, 20 मिनट्स में, सिर्फ 20 मिनट में अगर मैं बोलूं एट दिस पॉइंट, ओके, एट दिस पॉइंट हमारा 58%, 58.2% एग्जैक्ट, इतना वी टेंड टू फॉरगेट. ठीक है, इतना हम भूल जाते हैं. हमने जो अभी पढ़ा है उसका 20% हम भूल जाएंगे. ठीक है, विदिन 20 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट में सॉरी, हम 58.2% भूल जाएंगे. देन विदिन अ डे, एक दिन. ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट हम मार्क करें तो एक दिन के अंदर वी टेंड्स टू फॉरगेट 33.7%, इतना हम भूल जाते हैं. एंड पूरे महीने की अगर हम बात करें, ओवरऑल 31 डेज की बात करें, तो बाकी हम रेस्ट 21.1% तब भूल जाते हैं इन द मंथ, होल मंथ. बाकी बचा कुचा भी हम भूल जाते हैं. ठीक है, सो ही रिवील्ड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फॉरगेटिंग एंड टाइम. एंड इनिशियली इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी डीके हो रही है. आप देख रहे हो, जो शुरू का टाइम था 58% हमारा 20 मिनट के अंदर चला भी गया, अंदर जाने से पहले ही बाहर चला गया. ठीक है, तो यू आर बीइंग एबल टू सी कि शुरू में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है. ओके मैम, जो 20 मिनट्स हैं तो उनको उसको इमीडिएट टाइम बोलेंगे? हाँ, वो इमीडिएट ही है वो, राइट.
ओके ओके मैम। एज कम्पेयर टू होल मंथ 20 मिनट तो बहुत कम है विद इन दिस क्लास। Yes, अगर ma'am. पढ़ते पढ़ते ही मैं लास्ट क्लास तक कुछ पूछ रही हूँ, मैंने अभी बताया था और आप नहीं बता पा रहे हो, यानी कि हो गया। Yes, ma'am. ठीक है। Factors such as how information was learned and how frequently it was rehearsed play a role in how quickly these memories are lost. तो but it has a role. हमने अभी तक मेमोरी में पढ़ा था ना कि कैसे हम रिहर्स करते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं ताकि वो उसमें रहे लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर हम किसी चीज को रिहर्स नहीं कर रहे हैं तब ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू फॉलो, वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस वी आर री रिवाइजिंग थिंग्स, में बार बार आपको एक ही चीज बताया जा रही हूँ तो इट विल स्टे हेयर फॉर लॉन्गर। ओके, दिस वाज एबेनगॉस फॉरगेटिंग कर्व, जो भी मैं बता रही थी। ठीक है, सो इनिशियली मतलब दिस इज द नेचर ऑफ कर्व। शुरुआत में ही मेजर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू द होल मंथ। So there are 5 theories of forgetting, which include interference theory, displacement theory, trace decay theory, retrieval failure theory, and consolidation theory. So as per interference theory of forgetting, नाम में क्या है? interference, यानी कि हमारी मेमोरी में क्या क्या चीजें इंटरफेयर कर सकती हैं और उस इंटरफेरेंस की वजह से फॉरगेटिंग हो जाता है। ओके, अब ये कब कब हो सकता है? इट कैन अकर व्हेन इंफॉर्मेशन दैट इज सिमिलर in format gets in the way of information that someone is trying to recall. अगर आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और सिमिलर इंफॉर्मेशन आमने सामने आ जाती है उससे रिलेटेड, तो भी आपका वो यू टेंड्स टू फॉरगेट, आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी। वो सिमिलर इंफॉर्मेशन इंटरफेयर करेगा आपकी रिकॉल को। जैसे अभी वो कॉइन वाला एग्जांपल कर रहे थे, कॉइन हमें अच्छे से पता है, हम यूज करते हैं डेली, बट क्योंकि बहुत सारे सिमिलर पिक्चर्स वहां पे थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको रिकॉल करने में कि असली वाला कौन सा है। राइट? Yes, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। न्यू मेमोरीज हैव टेंडेंसी टू इम्पेयर द रिट्रीवल ऑफ ओल्डर मेमोरीज एंड वाइस वर्सा। दोनों बातें हैं। जब हम नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम नया नया मेमोरीज क्रिएट करते जा रहे हैं, पुरानी मेमोरीज को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लेयर बढ़ती जा रही है ना नई नई मेमोरीज की, नई नई एक्सपीरियंसेस की। एट टाइम्स मतलब अगर मेमोरी इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, बट अदरवाइज इट इज गुड ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज दिस इज बीइंग इंटेलिजेंटली प्लान्ड। क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो बहुत ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। राइट? इनफैक्ट अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, यार अभी कोई हमें कोई बुरा वाला बोल के भी चला जाए ना, हमें एक दिन गुस्सा आएगा, 2 दिन आएगा, आफ्टर अ वीक हम भूल भी जाएंगे किसी ने हमें कुछ कहा था, या वो जो हर्ट, वो जो फीलिंग, वो जो है, वो ग्रेजुअली इट फेड्स अवे। होता है ना, मेमोरी चली जाती है। अभी अभी कुछ Yes. बड़ा बड़ा हुआ है वो Yes, अभी ma'am. याद रहेगा, अभी परेशान रहोगे, बट ग्रेजुअली इट विल फेड अवे। Yes, ठीक है, ma'am. क्योंकि Yes. आपके अंदर लाइफ तो चल रही है ना, यू आर डेली यू आर क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज, तो पुराना फेड अवे होगा ही होगा। ठीक है, तो जब नई मेमोरीज होती हैं तो पुरानी का रिट्रीवल भी मुश्किल होता है। कभी कभी अगर पुरानी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ओवर पावरिंग है, तो आपको नई मेमोरी बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी दैट वे ऑल्सो। अगर ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड है, अभी मैंने कुछ बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, तो क्या मैं कुछ नया पढ़ पाऊंगी? होता है ना, जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप कहते हो यार फ्रेश माइंड से करेंगे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, क्योंकि ये जब इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ भरा होता है तो वी कांट ग्रैस्प समथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस ऑल्सो हैपेंस। तो इसी में आता है कॉन्सेप्ट में, इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट में, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब ओल्ड मेमोरीज हमारी न्यू मेमोरीज बनाने की एबिलिटी को हिंडर कर रही है। ओके, सो इन दिस इंटरफेरेंस ओल्ड इंफॉर्मेशन
पुरानी इंफॉर्मेशन इनहिबिट्स एबिलिटी टू रिमेम्बर न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर पहले ही इतना कुछ चल रहा है तो आई विल से कि मैं फ्रेश होके पढ़ाई करूंगी ताकि मैं एसिमुलेट कर सकूं चीजों को। ठीक है, तो दिस इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन हमारी करंट एबिलिटी टू रिमेम्बर को इफेक्ट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव में न्यू इंफॉर्मेशन जो आप कर रहे हो, जो आप ले रहे हो, वो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में दिक्कत कर रही है। ओके, इट इज व्हेन ओल्ड मेमोरीज आर चेंज्ड बाय न्यू वंस। जब आप नई इंफॉर्मेशन लेते चले जाते हो तो पुरानी इंफॉर्मेशन दबती चली जाती है। इतना हो जाता है कभी कभी कि पुरानी मेमोरी जो ओरिजिनल मेमोरी है वो फॉरगेटिंग भी, इट कैन बी फॉरगॉट आल्सो। ठीक है, भूल भी सकते हैं हम इसको। Okay, so this is when newly learned information interferes with and impedes the recall of previously learned information. पुरानी information को हम याद नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है रेट्रोएक्टिव में ईमेल आईडी, हमें नई वाली ईमेल आईडी याद रहती है, पुरानी नहीं रहती है। नया पासवर्ड याद रहता है, हम पुराना भूल जाते हैं, होता है ना? Yes, ma'am. राइट। यस मैम। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है कि लर्न कॉम्बिनेशन टू हाई स्कूल लॉकर और मेमोरी ऑफ ओल्ड स्कूल लॉकर। अब क्या होता है, आपको कुछ ऐसे भी होता है ना, कुछ बहुत पुराने पुराने फोन नंबर याद रहते हैं। मैम और मिक्स भी हो जाता है कभी कभी, है मिक्स भी हो जाते हैं, एक बार ऐसे मिक्स भी हो जाते हैं, एक्चुअली मिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, हम उसको इंटरमिक्सिंग भी कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। पुरानी यानी कि पुरानी मेमोरी हिंडर कर रही है ना न्यू मेमोरी Yes. में। ठीक है, तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। Then we have another theory called retroactive failure theory of forgetting. Sorry, retroactive भी पढ़ा है, retrieval failure theory of forgetting. ठीक है, retrieval failure means जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसको हम क्यू डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्यूज अवेलेबल। कुछ तो होते हैं सिमेंटिक क्यूज। ठीक है, सिमेंटिक क्यूज में जब हम किसी चीज को रिट्रीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद समथिंग एल्स, विद सम अदर मेमोरी। ठीक है, दैट इज सिमेंटिक क्यू। जब हम किसी को उसके कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग की वजह से याद कर पाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से याद रख पाते हैं। ऑल्दो कॉन्टेक्स्ट वाला अभी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इट इज मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द मीनिंग एंड इट्स एसोसिएशन विद एनी अदर मेमोरी। ओके, किसी और चीज के साथ अगर एसोसिएट करके वो चीज रखी है, समझी है, डाली है, तो वो आपका सिमेंटिक क्यू है। देन यू हैव स्टेट डिपेंडेंट क्यू, यानी कि वही वाला जो हम पढ़ रहे थे। अगर आपने अच्छे मूड में वो चीज डाली थी तो वो अच्छे ही मूड में याद आएगी। अगर आपने ड्रग्ड स्टेट में, अल्कोहलिक स्टेट में कोई चीज करी थी तो वो उसी स्टेट में जाके याद आएगी। अदरवाइज इट विल बी, यू विल बी अनेबल टू रिमेम्बर आपने क्या किया था, क्या बोला था उस वक्त। उसी स्टेट में शायद वो याद आ जाए। ठीक है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, जब नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो सारा नेगेटिव याद आने लगता है। ठीक है, अच्छी है, जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो हमें अपनी लाइफ की सारी अच्छी बातें याद आएंगी। ओके, so that is state dependent cue. Context dependent cue is depending on the environment and situation. So it is more of the context. जब सिमिलर सिनारियो डेवलप होता है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज याद आ जाती है। जैसे मेमोरी में काफी चीजें हमारे पढ़ी होती हैं, लेकिन जब while discussing certain things, बातचीत करते करते हमें कुछ याद आ जाता है ना, मतलब फिर हम अपना पॉइंट देते हैं, अरे हमें भी ये बात याद आ गई है रिगार्डिंग दिस थिंग। जैसे क्लास में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ जाता है। अब वैसे एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इट इज देयर इन योर मेमोरी, बट एक कॉन्टेक्स्ट जब लगता है अरे हाँ ये चीज तो इससे रिलेट हो रही है, तब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब वो उस कॉन्टेक्स्ट को, उस एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को मैच करती है तो हमारी मेमोरी रिट्रीव हो पाती है उसमें। ठीक है, और अगर जब हम रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, ये क्यूज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इट विल लीड टू फॉरगेटिंग।
देन डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, दिस इज वेरी सिंपल। अभी जो हमने एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व पढ़ा था ना, दैट इज ओनली डीके थ्योरी। इसको हम ट्रेस डीके थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। व्हाट इज इट अबाउट? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब भी हम कुछ नया लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उसका एक न्यूरोकेमिकल सिग्नल यानी कि मेमोरी ट्रेस बनता है। आई गेस वी हैव स्टडीड, एनग्राम पढ़ा था ना कल हमने क्लास में, पढ़ा था? मेमोरी ट्रेस के बारे में कल बात करी थी ना हमने। यस Yes, मैम, ma'am. एग्जाम। यस मैम। हाँ, तो मेमोरी ट्रेस बनता है, ओके। लेकिन विद टाइम ये मेमोरी ट्रेस फेड अवे होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो डीके थ्योरी यही कहती है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवर्स नहीं कर रहे हो, या कुछ और बार बार रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो द ट्रेस, मेमोरी ट्रेसेस जो हमारे अंदर हैं, जो बने हैं, वो भी डिके होने लगते हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, और इसी को हम फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। तो दिस इज डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है। तो ग्रेजुअली व्हाट हैपन, इट Yes, इज ma'am. दैट हमारे न्यूरॉन्स डाई विद एजिंग। होता है ना, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अरे अभी तो उम्र हो चुकी है इसलिए कुछ याद ही नहीं रहता है ना। तो विद एज ये ज्यादा आता है कि अभी ज्यादा याद नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज आपके न्यूरॉन्स, आपके जो न्यूरॉन सेल्स हैं, दे ग्रेजुअली डाई ऑफ, धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, हम्म जैसे कि किसी किसी को कोई कोई चीजें वो नहीं भूलते, जैसे कि मुझे फोन नंबर्स मतलब मैं भूलती ही नहीं हूँ। जो मैंने कभी बचपन में भी कोई फ्रेंड होगी मेरी स्कूल टाइम में 4th 5th क्लास में, मुझे आज भी उसका फोन नंबर याद होगा, चाहे मैंने सालों से फोन नहीं किया, फ्रेंड भी नहीं होगी वो मेरी। तो उसमें फिर ये डीके ट्रेस नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअली वो क्या हो गया है ना, वो आपके इसमें दो बातें हैं। एक तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, मतलब किसको क्या चीज ज्यादा ध्यान में रहती है, ये एक डिफरेंट पार्ट है। आई हैव सीन पीपल, जैसे मैं, आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, बट स्टिल, हाँ, जैसे आपने फोन नंबर की बात करी, दो आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, स्टिल कुछ फोन नंबर ऐसे होंगे जो मुझे आज भी याद हैं, जो फोन नंबर एग्जिस्ट तक नहीं करते हैं। कुछ पुराने लैंडलाइन नंबर्स, नानी के घर का, अपने घर का, इस तरीके के नंबर्स हैं जो याद है। तो उसके पीछे ये है कि वो डिके इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुके हैं। क्योंकि जब आपने वो याद किए थे ना, मतलब एट दैट टाइम जब आप उस नंबर को यूज करते थे, तब इट वाज लाइक ग्रेजुअली वो आपके लॉन्ग टर्म में चला गया था। आई डोंट थिंक आप उस वक्त कभी कॉन्टैक्ट से निकाल के भी करते होगे, शायद आप खुद ही मिला देते होगे। मैम बट मतलब जैसे मेरे साथ ऐसे होता है कि अगर आपने अभी मुझे बोला कि सृष्टि का ये नंबर है, उसे कॉल कर लेना, और आप मुझे 3-4 दिन बाद बोलोगे कि सृष्टि को कॉल करो, तो मुझे याद होगा वो नंबर। हाँ, तो यू दैट मीन्स आपका फिर वो एक तो इसमें न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस वाला पार्ट भी आ गया ना, अच्छा। नंबर इंटेलिजेंस जो चलता है। The ओके। people which who are like good with numbers, remembering numbers, इसमें और आई गेस इसमें वो जैसे मेमोरी का भी रोल रहता है, which kind of memory you are seeking। जैसे किसी का आइकॉनिक बेटर हो सकता है, किसी का ऑडिटरी बेटर हो सकता है, उसमें भी फर्क होता है। जैसे मैंने बोला था ना, मुझे देख के ज्यादा याद रहता है rather than सिर्फ सुन सुन के, ओके। हाँ। उसका भी और मैटर मैम करता है एक यहाँ और पे, बट क्वेश्चन, जैसे कि yes this हाँ सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे मेरा नंबर्स का है, किसी का डेट्स का हो हाँ सकता है, तो हाँ। क्या इसमें ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, या ये बस हमारा सबका अलग अलग इंटेलिजेंस है सिंपली? नहीं, हो सकता है। देखो, ब्रेन का मैं स्पेसिफाई तो नहीं कर पाऊंगी अभी एग्जैक्टली क्या कौन सा पार्ट एक्टिवेट रहेगा, लेकिन जैसे एक तो जनरल हो गया कि ऑब्वियसली व्हेन वी आर डीलिंग विद सम लॉजिक्स है इस तरीके का, तो ब्रेन का जो पर्टिकुलर पार्ट है, फ्रंटल लोब है, वो सारे ये इस तरीके के काम करेगा ही करेगा। बट अगर हम कह रहे हैं कि हाँ किसी में वो चीज ज्यादा एक्टिवेटेड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेन में शोड सम डिफरेंट पैटर्न। एरिया वही होगा, एरिया बहुत डिफरेंट नहीं करने वाला है आपका और मेरे ब्रेन का, बस ये है कि शायद आपका ज्यादा एक्टिवेटेड हो वो पर्टिकुलर एरिया। ओके। ओके मैम। ठीक है।
सो और लास्ट लाइन भी इसमें यही लिखी है, एट टाइम्स ओल्डर मेमोरीज आर मोर रेजिस्टेंट टू शॉक और फिजिकल असॉल्ट्स ऑन द ब्रेन देन रीसेंट मेमोरीज। मतलब कुछ मेमोरीज हमारी ऐसी होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनको आप निकाल नहीं सकते हो, मतलब यू कैन नॉट, दे कैन नॉट फेड अवे, दे कैन नॉट डिकेड। ओके, लास्ट लाइन यही लिखा है। मैम ये डीके लर्निंग जो होती है ये एसटीएम में होती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। हाँ हाँ राइट, यस वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे जो डीके मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही अप्लाई होती है। दिस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग एक्चुअली इज नॉट, मतलब यहीं पे आपके सवालों का आंसर भी है ना, वही बोला था ना मैंने, अगर कोई चीज बहुत लॉन्ग टर्म में जा चुकी है ऑलरेडी तो वहां डीके नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड मैम। है ना, तो ये एक्चुअली ये बात सही है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है थ्योरी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, सेंसरी स्टोरेज में होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, दोनों में होती है, सेंसरी स्टोरेज एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऑटोमेटिक डीके होता है। ठीक है, और so there is one task related to this decay theory, Brown Peterson task जो था, इन्होंने ब्राउन और पीटरसन ने कंडक्ट किया था। So they attempted to measure how long information is retained in short term memory without active processing। ठीक है, हम कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कितनी देर तक शॉर्ट टर्म में रहती है। So एग्जाम्पल के लिए they asked to remember these 3 letters and then they count backward by 3 seconds. Took a 3, 2, 1 from the given number. Stop counting and report the letters when the experimenter tell you to do so. ठीक है, so basically this experiment was about creating delays in your learning. मतलब आपको ये दिखा दिया, उसके दिखाने के बाद they are asking you to report after certain delays। पहले 5 सेकंड बाद पूछा आपने क्या देखा, फिर 10 सेकंड बाद पूछा आपने क्या देखा था, फिर 15 सेकंड बाद पूछ रहे आपने क्या देखा था। जब रिजल्ट आया तो ये पता चला कि ऑब्वियसली जब डिले बढ़ता, जैसे जैसे डिले बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारा आउटपुट कम होता जा रहा था। तो यानी कि डिले का भी रोल रहता है लर्निंग एंड रिकॉल में। इट एक्चुअली जब लर्न किया और रिकॉल का डिले बढ़ा रहे हैं, आपने एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ा था और मैं अब पूछ रही हूँ, आफ्टर 1 वीक आई एम आस्किंग यू समथिंग, तो आपको आंसर देने में मुश्किल होगी। लेकिन आपने जो कल पढ़ा था और मैं आज पूछ रही हूँ तो यू विल बी एबल टू आंसर ना। यस मैम, है ना, रिकॉल बेटर हो गया क्योंकि मैंने कम टाइम लिया, अभी डिले कम था। लेकिन अगर मैं एक हफ्ते बाद आपसे सेम बात पूछूंगी तो शायद यू विल टेक मोर टाइम टू आंसर और यू मे नॉट बी एबल टू आंसर। होता है ऐसा। So this is about the delay thing within this theory, role of delaying. So when counting was done backward from a given number, there were 2 assumptions which were followed here. While you are counting backward, you cannot rehearse PNR. तो उन्होंने क्या किया, बीच में एक तरीके से इंटरफेरिंग टास्क रख दिया ना, बीच में एक इंटरफेरिंग टास्क भी रख दिया। ऐसा नहीं है कि बस आपने फोटो देखी, आपने अल्फाबेट देखी और आपको 5-6 सेकंड बाद पूछ रहे हैं आपने क्या देखा। नहीं, उन्होंने वो देखा, उसके बाद वो कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनको नंबरिंग में उलझा दिया और नंबरिंग में उलझाने के बाद फिर पूछ रहे हैं। तो क्या हो गया, मीनवाइल उनको मेंटली रिहर्स करने को नहीं मिला जो उन्होंने देखा। होता है ना, जब पढ़ाई करते थे स्कूल टाइम में स्पेशली, एक चीज पढ़ी उसको बार बार मन में दोहराते रहते थे, ऐसे याद करते थे ना, सेल्फ उसको बोलते रहते थे अपने आप, मन ही मन में। ठीक है, तो वो एक तरीके से रट्टा ही मारते थे उस वर्ड। हाँ, लेकिन जब बीच में हमें कुछ और टास्क दे दिया है तो हमें तो रिहर्स करने का मौका ही नहीं मिला ना कि हमने क्या देखा। ठीक है, दूसरा assumption है इसमें, काउंटिंग बैकवर्ड बाय 3 does not interfere with retention of PNR।
दूसरा assumption आपको बिल्कुल इसके रिवर्स जो अभी हम कह रहे हैं लेके चल रहे हैं, वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक तो रिहर्स करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन काउंटिंग करने से पीएनआर के रिटेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जो देखा था वो रिटेन कर लिया आपने, हाँ फर्क बस ये है कि रिटेन करने के बाद शायद रिहर्सल का मौका नहीं मिल रहा है, बट काउंटिंग से डेफिनेटली जो आप पहले पढ़ चुके हो उसके रिटेंशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ रिहर्स नहीं कर पा रहे हो उससे शायद फर्क पड़ रहा है। तो दीज आर अजम्पशंस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दिस डिले सिस्टम। ठीक है, जो हम डीके से रिलेटेड पढ़ा हमने। सो दिस वाज द रिजल्ट। जब डिले बढ़ गया था इट वाज 3 to 18 सेकेंड, तो रिस्पॉन्स वाज वेरी लो। ठीक है, तो करेक्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था। Then we have displacement theory of forgetting. Displacement theory says कि जो भी हम नया पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड इंफॉर्मेशन। जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी मेमोरी है, जो पुराना पढ़ा है, वो न्यू इंफॉर्मेशन से एट टाइम डिस्प्लेस भी हो जाता है। ठीक है, तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन जो है, जो यूज में नहीं है, और विद टाइम हम नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो पुरानी दबती चली जाती है और वो रिप्लेस हो जाती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरी। अगेन हमें बचपन की सारी बातें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारी हर रोज एक नई मेमोरी बन रही है, हर रोज। तो पुरानी मेमोरी डिस्प्लेस होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है। दिस इज वन ऑफ द अगेन theory or explanation. Then within this theory there is one experiment or task called as serial probe task done by Vog and Norman. So they put both this displacement theory और जो हमने अभी decay theory पढ़ी थी, उन दोनों को उन्होंने टेस्टिंग पे रखा। And one task was designed where each participant listened, ठीक है, सुना, to a long list of letters को उन्होंने they just listened. Okay, the researchers would yell out one of the letters from the list and the participant would have to name the letter listed after. List पढ़ ली पूरी, उसके बाद the researcher is naming one of the alphabet, one of the word, and आपको बताना है उसके बाद कौन सा word था। ठीक है, इस तरीके से the experiment was designed. So what they found was displacement theory could explain some instances of forgetting but not all. तो इस experiment से उनको ये पता चला डिस्प्लेसमेंट की क्यों बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वर्ड सुने एक के बाद एक। ठीक है, लॉन्ग लिस्ट थी ना, एक वर्ड सुना याद रहेगा, दूसरा सुना फिर याद रहेगा, तीसरा थोड़ा रहेगा, चौथा याद, पढ़ते 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 पहला भूल जाएंगे क्या था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आया, जो आउटपुट था, कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट थ्योरी अप्लाई तो हो रही थी बट पूरी तरीके से नहीं हो रही थी। तो एट टाइम्स हमें याद भी रहती हैं चीजें, जब जैसे हमने वो पढ़ा ना प्रेमिसी इफेक्ट एंड रिसेंसी इफेक्ट, वो भी इसी में से निकलेगा कि अच्छा हाँ, फिर भी हमें वो भी, उसका भी रोल आ जाएगा इसके अंदर। जो सबसे पहले सुना वो याद रहेगा, जो सबसे लास्ट में सुना वो याद रह जाएगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इसमें था वो ये था, जब लिस्ट वाज रेड फास्टर, अगर मैं तेजी से लिस्ट पढ़ रही हूँ ना, फटाफट कम टाइम ले रही हूँ, तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड टास्क मोर सक्सेसफुली। इफ मैंने कम टाइम स्पैन लिया तो इसमें ना कोई डिले वाला रोल आ गया ना समवेयर एक तरीके से। अगर मैं छोटे टाइम स्पैन में आपको फटाफट, है ना, 5 सेकंड्स के अंदर इफ आई एम रीडिंग आउट द होल लिस्ट, शायद आपको ज्यादा ध्यान में रहे वर्ड्स। लेकिन अगर इफ आई एम टेकिंग लॉन्ग टर्म, 30 सेकंड्स में ले रही हूँ 10 वर्ड्स को बोलने के लिए, तो वो वहां पे आपकी टेंडेंसी टू फॉरगेट बढ़ जाएगी। क्लियर है एक्सपेरिमेंट? यस मैम। Then we have consolidation theory of forgetting. So this particular theory is based on the physiological aspects of forgetting. Now what are these physiological aspects? Consolidation you already know. याद है सबको? What is consolidation? मैम जब मेमोरी एसटीएम से एलटीएम में जाती है तो ट्रैक बन जाते हैं, वो ऐसा कुछ था।
राइट तो जब मेमोरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाके स्टेबलाइज होने लगती है उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसीजर में, आपका शॉर्ट टर्म सिस्टम लॉन्ग टर्म सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग ये कहती है जब आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हो, जब आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं जा रही है किसी भी वजह से, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और एनी इंजरी और बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है, ठीक है, तब कंसोलिडेशन ही नहीं होगा। और जब कंसोलिडेशन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा तो आप भूल जाओगे, शॉर्ट टर्म में तो डीके हो जाता है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। So this term of consolidation was given by George Elias Muller and Alfred Pilzecker in 1900, and these were the two person who actually also gave the concept of retroactive interference, which we have already studied. So retroactive interference में भी यही था ना, जो newly learned information है, that is retrieving the retrieval of old one in terms of consolidation, लेकिन ठीक है। Then we have motivated forgetting theory. This was suggested by Friedrich Nietzsche, and उनका ये कहना था कि at times people intentionally forget their memories. जानबूझ के हम कुछ मेमोरीज को भूलना चाहते हैं, इसलिए हम सप्रेस कर देते हैं उनको, ओके। सो जब कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या कुछ ऐसा शेमफुल है जो हम याद भी नहीं रखना चाहते, हम we try to like stay away from it, उस मेमोरी वो अनवांटेड मेमोरी की तरह होती है, उसको हम भूलना चाहते हैं, उसको हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग बोलते हैं, जिसको हम या तो जानबूझ के यानी कि कॉन्शियसली खुद से हम किसी चीज को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा अनकॉन्शियसली भी होता है हमारे साथ, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जो अनकॉन्शियसली ही आप भूल जाओ, ठीक है। जब ये अनकॉन्शियसली होता है तो वी कॉल इट एज रिप्रेशन, ठीक है। एंड जब वो कॉन्शियसली हम खुद करते हैं तो हम उसको सप्रेशन बोलते हैं, और यही कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने भी दिया था, यस मैम, है ना, रिप्रेशन Yes, का ma'am. कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली कैसी चीजें गवर्न होती हैं, ये सारी चीजें वहां से फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट से आ रही हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। Then we have one more Gestalt theory of forgetting. ये Gestalt है ना, टू सी थिंग्स एज अ होल, तो वो ये वही वाला फॉरगेटिंग है जब हमें पूरी बात याद नहीं रहती है, अधूरी बातें बिट्स एंड पीसेस में याद होती है, धुंधला धुंधला डिस्टॉर्टेड मेमोरी होती है किसी चीज की, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम उस डिस्टॉर्टेड पिक्चर को एक्चुअली वी ट्राई टू फिल इट विथ समथिंग एल्स टू क्रिएट अ पिक्चर आउट ऑफ इट, दैट इज Gestalt थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। हम उन मेमोरीज को बिट्स एंड पीसेस में या धुंधली पिक्चर को समझ नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, बट हम वी ट्राई टू समहाउ फिल इट टू हैव सम पिक्चर आउट ऑफ इट, दैट दिस इज Gestalt थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थियरीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Now how can we prolong these memories? We can get in touch with emotions. हमने पढ़ा ना, emotions के साथ memory strong होती हैं. We can pay attention and engage all our senses. जितने senses involve होंगे, आँख, कान, सबके through we are trying to take that information, उतना memory strong होगा. Make as many associations as possible. तो उसको link करके पढ़ना है ना। जैसे अभी हम मेमोरी पढ़ते पढ़ते ब्रेन का इंफॉर्मेशन लिंक करके पढ़ रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग एसोसिएशंस। तो हम जितने एसोसिएशन बनाएंगे उतना हमें इजीली लर्न होगा। रिकॉल एंड शेयर द एक्सपीरियंस, बार बार रिकॉल करना और दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो भी हमारा बेहतर रहता है मेमोरी। यूज सेंसरी क्यूज, कुछ हम हिंट्स यूज कर सकते हैं, सेंसरी क्यूज यूज कर सकते हैं, कैसा दिखता है, कैसा सुनने में है, ठीक, कैसा टच में है। एक्सरसाइज एंड ईट हेल्थफुली, ऑब्वियसली हेल्दी रहना इज इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स, लिखने से भी मेमोरी एनहांस होती है। एंड
sleeping is very, very important because consolidation का process, it happens while we are sleeping. ठीक है, तो having a sound sleep is very, very important. Then there is a syndrome referred as Korsakoff syndrome, जिसको हम amnestic disorder भी बोलते हैं. This syndrome is caused by deficiency of thiamine or vitamin B1, right? And it is also associated with ingestion of alcohol. तो जब इसकी deficiency, थायमीन, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से होती है, तब ये सिंड्रोम डेवलप होता है, ये कंडीशन डेवलप होती है. ठीक है, एट टाइम्स इट कैन बी नॉन अल्कोहलिक इन नेचर आल्सो. ठीक है, तो वो नॉन अल्कोहलिक हो जाएगा, अदरवाइज अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी होता है. अमनीशिया, ये वर्ड जो यूज हो रहा है, दैट इज अबाउट फॉरगेटिंग ओनली, जब हम चीजें भूल जाते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर की तरह आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, ये बीमारी इस रशियन न्यूरो साइकेट्रिस्ट के नाम पर ही रखी गई है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था. This neurological disorder is caused by lack of thiamine in the brain and also exacerbated by neurotoxic effects of alcohol. तो जब अल्कोहलिक का इफेक्ट पड़ता है तो ये सिचुएशन और ज्यादा क्रोनिक हो जाती है, वर्स हो जाती है. When जब इनिशियल फेज में हम इसको वर्निक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, जब ब्रेन में थियामिन कम होता है तो वी डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड वर्निक एन्सेफेलोपैथी. ठीक है, लेकिन जब हम उसमें अल्कोहल इंक्लूड कर देते हैं तो ये अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम बन जाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम. ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है. इसके causes, as we have already discussed, the main cause is vitamin B1 और thiamine की deficiency. It causes lesion on the brain which results in Wernicke's encephalopathy. This is reversible acute phase जो reverse हो सकता है if immediately treated. इसका treatment possible है, but अगर इसको treat नहीं किया जाता है तो ये कोर्साकॉफ सिंड्रोम में कन्वर्ट होने लगता है, और इसको हम इरिवर्सिबल क्रॉनिकल फेज बोलते हैं क्योंकि ये परमानेंट ब्रेन डैमेज कॉज कर देता है. ठीक है, तो ये इसी का क्रोनिक स्टेज है. वर्निक एन्सेफेलोपैथी का क्रोनिक स्टेज इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम. लेकिन जब हम अल्कोहल इसमें ऐड कर देते हैं तो अल्कोहल क्या करता है, बेसिकली इट इंटरफेयर्स कन्वर्जन ऑफ थियामिन टू थियामिन पायरोफॉस्फेट. थियामिन की जो एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं होने देता है थियामिन को, अल्कोहल इंटरफेयर करता है. ठीक है, इसकी वजह से थियामिन हमारे इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब नहीं होता है. ओके, अब वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, विटामिन B1 नहीं मिल रहा है हमें. सो दिस अल्कोहल अब्यूज कैन कॉज सिरोसिस इंटरफेयरिंग विद स्टोरेज ऑफ थियामिन एंड मोल अब्सॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक कैंसर और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज व्हिच इंपेयर थियामिन अब्सॉर्प्शन. तो अगर स्टमक कैंसर है किसी को या बाउल डिजीज बहुत इन्फ्लेमेटरी स्टेज पर है, वहां पर भी हो सकता है वो थियामिन अब्सॉर्ब ना होने दे. दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द कॉज. ओके, तो दिस इज द थर्ड कॉज व्हिच कैन बी द वन, इसकी वजह से ये सिंड्रोम हो सकता है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड. एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मेजरली इसमें क्या होता है, एक तो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. एंटेरोग्रेड एमनेशिया इज एसोसिएटेड विद दिस. एंटेरोगेट में व्हाट हैपन, मेमोरी इम्पेयरमेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू अदर कॉग्निटिव डिसफंक्शन. यानी कि आप एंटेरोगेट होता है जब आपका मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जा रहा होता है. ठीक है, तो जब वो प्रोसेस नहीं होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां एमनेशिया कॉज हो जाएगा. जब इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में गई नहीं है तो वहां वो यू विल फॉरगेट इट अगेन. ठीक है, वहां पे इम्पेयरमेंट क्रिएट हो जाएगा. देन द ब्रेन पार्ट्स एसोसिएटेड विद दिस डायेन्सेफलम एंड टेम्पोरल लोब. तो लेशन इन दिस रीजन कैन कॉज सिमिलर सिंड्रोम. So this is important for you.
अगर डायनसेफ्लॉन और टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो भी इस सिंड्रोम के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावेनस थियामिन दिया जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो सिम्टम्स की हम बात करते हैं एक्चुअली, तो Wernicke's encephalopathy, which is the acute phase, Korsakoff syndrome, which is the chronic phase. इसके एक निमोनिक्स है कोट रैक, ठीक है। कोट इज फॉर Wernicke's encephalopathy and रैक इज फॉर Korsakoff. C for confusion, O for ophthalmoplegia. इसमें क्या होता है, there is swelling कहाँ पे, near your eye region or within your eye region, near और विद इन योर आईज, ठीक है, आंखों के आसपास या आंखों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। बेसिकली आपके आई मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, आई मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है इससे ड्यूरिंग दिस सिंड्रोम। अटैक्सिया, जब मस्कुलर पैरालिसिस होता है, मतलब मसल्स में ही पैरालिसिस हो रहा है, एक ही पोजीशन पे अटके रह गए हम, ठीक है। और थियामिन डेफिशिएंसी, तो वी नो थियामिन डेफिशिएंसी वी ऑलरेडी नो कि उसकी वजह से हो रहा है। तो दीज 4 आर एसोसिएटेड विद दिस। कॉर्शॉक सिंड्रोम के साथ आपका रेट्रोग्रेड एंड एंटेरोग्रेड एमनीशिया बोथ आर एसोसिएटेड। रेट्रो एंड एंटेरो एमनीशिया बोथ आर एसोसिएटेड। कन्फैबुलेशन, जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, फिलिंग कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड इसमें कॉर्शॉक साइकोसिस होता है, दैट इज रैक, RACK। नाउ एंटेरोगेट और रेट्रोगेट में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस रहते हैं। एंटेरोग्रेट एमनीशिया इज इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज। मैंने कहा ना, एंटेरोग्रेट इज जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, दिस इज एंटेरोगेट, दिस पाथवे इज एंटेरोग्रेट पाथवे, राइट। और अगर जब हम ये नहीं कर पाते हैं, नई मेमोरीज बना ही नहीं पा रहे हैं जब हम, ठीक है, तो वो उस केस में क्या होगा, एंटेरोग्रेट अमनेशिया उसको हम बोलेंगे। मैंने कल भी एक चार्ट आपके साथ ना नोट्स में से डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने ये मार्क किया है, कल मैंने बताया नहीं था जानबूझ के, बट उसमें भी आप जब रिवाइज करोगे ना, तो उस चार्ट में भी हमने लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है, हिप्पोकैम्पस से जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो इंटेरोगेट होगा, बट जब रिवर्स प्रोसीजर होता है तब वो रेट्रोग्रेड बनता है। रेट्रोग्रेड इज इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट मेमोरी। जब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में कुछ लाना है, वर्किंग में कुछ लाना है, रिकॉल करना है, इस पाथवे को हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो हम उसको रेट्रोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं। अभी क्लियर है सबको ये? यस मैम। Okay. So when we are not able to create new memories, interrogate. Medial temporal lobe or medial diencephalon are the parts associated with this. ठीक है, diencephalon and medial temporal lobe. Memories before the onset of amnesia you can easily recall. ठीक है, ध्यान में रखना, एमनीशिया होने से पहले, मतलब जब आप वो भूले, ये जो प्रोसीजर जो डैमेज हो गया, सपोज आपका ब्रेन का मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया और आपको एंटेरोग्रेट एमनीशिया हो गया, अब आप नई मेमोरीज नहीं बना पाओगे, ठीक है। लेकिन उस डैमेज से पहले जो आपके साथ हुआ है ना, वो आपको याद रहेगा, यू कैन रिकॉल दैट। नई मेमोरीज इफेक्ट हो रही है ना, पुरानी नहीं हो रही है, ठीक है, यू कैन रिकॉल दैट। लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या होगा, आप पुरानी इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर सकते। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहेगा रेट्रोग्रेड में? रीजन बिसाइड द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। यस मैम। वो मैम जो पास्ट में हो गया वो मेमोरीज हो गई, हाँ, तो वो इसीलिए हिप्पोकैम्पस डैमेज, अगर डैमेज हो रहा है तो वो मेमोरीज रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं ना मेमोरीज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना रेट्रोग्रेड में क्या हो रहा था, हम एक्चुअली पुरानी जो हमारी मेमोरीज हैं जो लॉन्ग टर्म में जाती हैं, उसको हम वापस नहीं रिकॉल कर पाते हैं। यस मैम, ठीक है। नई मेमोरीज हम बना नहीं पाएंगे एंटेरोग्रेड में, लेकिन
इसमें ये जो रेट्रोग्रेड हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम नई मेमोरीज बना सकते हैं, सिर्फ पुरानी रिकॉल नहीं कर सकते हैं। वो yes. मूवीज नहीं आती थी जिसमें याददाश्त खो जाती है, तो यानी कि पुरानी तो चली गई लेकिन नई मेमोरीज तो क्रिएट हो रही है ना अभी। यस मैम। है ना? तो पुरानी याद नहीं है उनको क्या हुआ उनके साथ, लेकिन नई मेमोरीज तो वो क्रिएट कर रहे हैं, अभी कौन है उनके साथ कौन नहीं है, अभी तो वो सब क्रिएट कर रहे हैं मेमोरीज। ओके। Causes brain damage due to effect of long-term alcoholism, severe malnutrition, stroke, head trauma, anoxia, surgery, Wernicke-Korsakoff syndrome, cerebrovascular event, trauma. ये सारे causes they can be the one जिससे हम न्यू मेमोरीज ना बना पाए, एंटेरोग्रेड एमनीशिया हमें हो जाए। लेकिन रेट्रोग्रेड में हेड ट्रॉमा, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ट्यूमर, हाइपोक्सिया, इसमें भी एनसेफेलिटिस, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, ये सब चीजों की वजह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट विद फार्माकोलॉजिकल मेथड ड्यू टू न्यूरोनल लॉस। न्यूरॉन, जब आपके न्यूरॉन्स ही लॉस हो रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब आप नई मेमोरीज ही नहीं बना पा रहे हो, न्यूरल कनेक्शन ही लूज हो गया है, तो मुश्किल है इसको ट्रीट करना। इसको फिर भी हम ट्रीट कर सकते हैं पुरानी मेमोरीज याद दिला के। तो रेट्रोग्रेड को ना याद रखो, रेट्रोग्रेड को जो मूवीज आती थी ना पहले याददाश्त वाली, वहां पे याद दिलाते हैं ना, याद हूं तुमको, मैं याद हूं, मैं कौन हूं, वो याद दिलाते हैं मूवीज के अंदर, ओल्ड मूवीज के अंदर, दैट इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया। और थोड़े टाइम के बाद उनकी याददाश्त वापस भी आ जाती है। ठीक है, तो वो रेट्रोग्रेड है। टेम्पररी वर्सेस परमानेंट, दिस कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, दिस इज यूजुअली टेम्पररी। रेट्रोग्रेड एमनीशिया रिवर्सिबल है, मेमोरी वापस आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एंटेरोग्रेड में वी आर नॉट वेरी श्योर, मुश्किल हो सकता है यहाँ पे इसको ट्रीट करना। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम अगर इनका हिंदी में नहीं देखेंगे ना तो पश्चगामी और अग्रगामी है, तो उसके हिसाब से हम याद अग्रगामी रख है, सकते हैं। अग्रगामी पश्चगामी और और अग्रगामी। अच्छा, अग्र इज आगे पश्चगामी, है ना, हाँ, पश्च माने पीछे, पीछे की पीछे, याद नहीं रहती। हाँ पीछे की याद उससे नहीं इजी हो जाएगा याद रखना। रहती। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। There are seven major symptoms associated with this syndrome. Anterograde, retrograde, ये we have studied. Amnesia of fixation, यानी कि लॉस ऑफ इमीडिएट मेमोरी, जब अभी कुछ पढ़ा है, अभी कुछ पढ़ते ही भूल गए, अभी किसी ने कुछ बोला है और हम भूल गए। ठीक है, एमनीशिया ऑफ फिक्सेशन। कन्फैबुलेशन, ठीक है, जब मेमोरी में गैप्स आने लगते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। मिनिमल कंटेंट इन कन्वर्सेशन, अब जब किसी के पास मेमोरी नहीं होती है ना अच्छी सी, तो वो बात लिमिटेड करेंगे, उनकी बातों में कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट जब मेमोरी में है ही नहीं तो ज्यादा बातों में कैसे आएगा। लैक ऑफ इंसाइट, अगेन क्योंकि मेमोरी इज ऑल्सो मेकिंग आवर एक्सपीरियंसेस ना, तो जब मेमोरी नहीं है ना किसी चीज की, तो वो इंसाइट भी कम हो सकता है चीजों को समझने का। ठीक है, एपैथी, पेशेंट लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स क्विकली, जब चीजों की मेमोरी नहीं है तो आपका अटैचमेंट भी लूज हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है। ठीक है, तो लोग एपैथी की टुवर्ड्स इमोशनलेस थोड़ा होने लगते हैं, किसी चीज के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर ही नहीं हुआ है। सो दीज आर द सिम्टम्स। ओके, now yesterday also we were talking about this concept, eye witness testimony. ठीक है, तो आई विटनेस टेस्टिमनी क्या होता है? कल बात कर रहे थे ना इसके बारे में, आई थॉट इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कब होता है जब ये? मैं हाँ जी। कोई दुर्घटना होते हुए देखी और उसको फिर जैसे पेश किया गया कोर्ट वगैरह में, तो वहां पे जब वो गवाही देगा तो उसके कुछ याद नहीं रहेगा, तो अपनी तरफ से बना देगा कुछ फैक्ट वो
जोड़ देगा राइट उसके अंदर। राइट राइट राइट। ठीक है, आई विटनेस, जब भी कुछ दुर्घटना होती है तो बुलाते हैं ना, कौन है चश्मदीद गवाह जिसने देखा था, जो वहां मौजूद था। ठीक है, और फिर वो जाके बताता है उसने क्या देखा, कैसा देखा, कभी सही बताता है, कभी थोड़ा आगे पीछे बता देते हैं। ठीक है, तो वो आई विटनेस टेस्टिमनी। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रिटन है जो कि इसकी एक्यूरेसी को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मतलब जो भी आई विटनेस है जिसने देखा है इंसिडेंट होता हुआ, मर्डर होता हुआ, तो वो क्या होते हैं, अगर उनके कुछ पुराने अपने थॉट्स और दुनिया में बिजी हैं, तो वो हो सकता है आप रोड पे चल रहे हो, आप अपने ही दुनिया में बिजी हो, आप परेशान हो, और कुछ सामने हो जाता है, तो आपका जो एक्यूरेसी होगा अगेन कम होगा टू नोटिस थिंग्स कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, या फिर कभी कभी लोग क्राइम देख के इतना घबरा जाते हैं कि अगेन दे मिस आउट द डिटेल्स। ठीक है, क्रिमिनल के एक्शंस कभी कभी इतने तेजी से अचानक से होते हैं, फटाफट, कि हमें पता भी नहीं चलता कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ठीक है, स्पेशली क्रिमिनल्स अक्सर मास्क वगैरह पहनकर ही आते हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके। आई विटनेसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो डिस्गाइज में रहते हैं लोग। प्रायर एक्सपेक्टेशंस, उनकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने बैकग्राउंड में उनके क्या चल रहा है। अगर मतलब हम निश्चिंत होकर चल रहे हैं कहीं रोड पे, अब हमने थोड़ी एक्सपेक्ट किया है रोड पे चल रहे हैं अचानक से कोई आएगा शूट कर देगा, तो गोलियां चलने लगेंगी। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग। ठीक है, तो वो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो भी हमारे लिए वो एक इशू बन सकता है। प्री पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन, उस इंसिडेंट से पहले आपको क्या बताया गया था, उस इंसिडेंट के बाद भी आपको क्या इंफॉर्मेशन एड ऑन दी जा रही है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं हमें। ठीक है, ओवर ब्लोन कॉन्फिडेंस, जो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। अनकॉन्शियस ट्रांसफरेंस, कभी कभी हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी चीजें भी उसके अंदर अनकॉन्शियसली ऐड कर देते हैं। वर्बल ओवरशैडोइंग, बोलते बोलते कुछ और मीनिंग कुछ और निकल जाता है। वेपन फोकस, मैंने कल बताया था, जब पूरा ध्यान आपका वेपन पे है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, थ्रेट और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। जब पूरा ध्यान वेपन पे है तो पेरीफेरी में क्या हो रहा है वो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच कैन रिड्यूस दिस। इवन आवर एक्सपेक्टेशंस कैन डिस्टॉर्ट आवर मेमोरी। तो मैम, हाँ जी, जो प्रायर एक्सपेक्टेशंस था पीछे आई विटनेस वाले में, इसका प्रायर एक्सपेक्टेशंस का मतलब थोड़ा सा प्रेजुडिस में जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग का प्रेजुडिस है कि ब्लैक्स आर मोर प्रोन टू क्राइम, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ब्लैक ने ही करा होगा। मतलब अगर हमारे पास यस यस दिस हैपेंस, हाँ बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ओके, है ना, अगर अभी अभी हम देख कर ही आ रहे हैं, एक तो जैसे आपने प्रेजुडिस बोला विच इज वेरी ट्रू। ठीक है, प्लस हम न्यूज में देखते हैं ऑफन कि सारे टेररिस्ट जो होते हैं ना, वो सारे लाइक दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, होता है ना। तो वी ऑलरेडी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। तो अभी आपके सामने वो क्रिमिनल लाके खड़े करे हैं 4-5, और आपकी टेंडेंसी है, आपको लग रहा है, जबकि सबके मास्क थे, सबने जब क्राइम किया फेस वर कवर्ड, बट आपको लग रहा है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन बी द वन। ट्रू, ओके, राइट, तो दिस कैन हैपन। दिस इज अगेन एक्सपेक्टेशन जो हम बात कर रहे हैं ना, यही हम इसी की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था लिडॉम और क्रिश्चियनसन ने। वहां पे स्वीडिश लोग थे और इमिग्रेंट स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रॉबरी विटनेस किया, होते हुए रॉबरी देखा। ठीक है, एंड जो स्वीडिश लोग थे उनका अपीयरेंस वर ब्लॉन्ड विद लाइट स्किन, जो इमिग्रेंट्स थे वो ब्लैक स्किन, ब्लैक हेयर, ब्राउन स्किन वाले थे। जो स्टूडेंट्स the students were asked to pick up the actually perpetrator from the line। ठीक है, उसमें हाफ स्वीडिश थे और हाफ इमिग्रेंट्स थे। रिजल्ट ये देखा गया कि the correct person was identified only 30% of time, because both Swedish and immigrant students were twice as likely to mistakenly select an innocent immigrant as an innocent one। मतलब ज्यादातर गलती करा सब लोगों ने, इनोसेंट इमिग्रेंट को ही जाके पकड़ा। राइट,
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लॉ मतलब जो कंक्लूड किया उन लोगों ने वो ये था, ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमिग्रेंट्स इन स्वीडिश क्राइम स्टैटिस्टिक्स। इमिग्रेंट्स को ही वो इनोसेंट इमिग्रेंट को ही वो चूज कर रहे थे बार बार कि इसी ने किया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स अभी तक शेयर हुए हैं स्वीडिश में, वो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था। वहां पे बार बार इमिग्रेंट्स का ही नाम आ रहा था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको टेररिज्म का दिया ना, तो बार बार उन्हीं का जिक्र होता था कि इमिग्रेंट्स ने किया है ये। तो इसलिए जब उनको बोला गया कि आप चूज करो किसने किया है, तो वो इनोसेंट इमिग्रेंट को ही टारगेट कर रहे थे, ठीक है। Then schemas also can shape and distort our memory. Bartlett ने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया था। schemas we already know, जिससे हमारा पूरा एक दुनिया का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है हमारे माइंड में, वो भी हमारी मेमोरी स्टोरेज एज वेल एज रिट्रीवल को इन्फ्लुएंस करता है। हमने कल भी आई गेस बात करी थी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो अपने स्कीमास की वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से बार बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने सच को खुद ही रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, whatever schemas we have. Okay, so even eyewitnesses use these schematic information to assist in their recall. जो भी schemas उनके माइंड में सेट है उसकी वजह से they'll try to recall things, उसमें फिट करके। आप लोगों ने दृश्यम देखी है? यस मैम। यस मैम। That movie explains all, है ना। उसमें किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है, कैसे मेमोरी डिस्टॉर्ट करनी है लोगों की, एक्चुअली में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं ना वो लोग, उसी जगह पे जाएंगे वापस जाएंगे, बार बार उनको वर्बलाइज कराएंगे कि उस दिन क्या हुआ था कैसे हुआ था, एंड दे आर गोइंग इनटू देयर मेमोरी एंड डिस्टॉर्टिंग दैट मेमोरी एंड क्रिएटिंग अ न्यू वन। ऐसे ही हुआ था ना उसमें, यस मैम। ठीक है। तो दैट इज अ वेरी परफेक्ट वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि मेमोरी के साथ कैसे खेला जा सकता है एक्चुअली, और आई विटनेस टेस्टिमनी भी कैसे चेंज होती रहती है वो भी उसमें पता चलता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो आई विटनेस भी अपने स्कीमास के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। इवन द लीडिंग क्वेश्चंस हैज रोल, तो ये लॉफस एंड पैल्मर ने ही आई विटनेस टेस्टिमनी भी इन्होंने ही दिया था, तो इन्होंने ही लीडिंग क्वेश्चंस का रोल भी बताया। तो आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, इवन वो भी आपके आंसर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगेन एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ था, कार एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा, और उनसे पूछा जाता है हाउ फास्ट वर द कार्स गोइंग व्हेन द कार स्मैश्ड इनटू, हिट इनटू, कोलाइडेड विद और बम्प्ड विद और कॉन्टैक्टेड विद ईच अदर। अलग अलग वर्ड्स बार बार बोल के उनको ये पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर 1 week they were asked if they saw broken glass. There wasn't any actually. The result was, जब स्मैश्ड वर्ड यूज करते हैं तो 40% लोग कहते हैं हाँ हाँ ग्लास तो टूटा था, बेसिकली ग्लास टूटा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग की क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हुआ है उसके बेसिस पे their memory is being influenced, their answers are being influenced. जब कॉन्टैक्टेड वर्ड यूज किया कि सिर्फ जब कॉन्टैक्ट हुआ था दोनों गाड़ियों का, तब 31.8% लोगों ने कहा कि हाँ ग्लास टूटा था, देखा था हमने टूटते हुए, ठीक है। सो मेमोरी कैन बी सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्टेड बाय द वे क्वेश्चंस आर phrased. Different schemas may be activated. Also, ये जो अभी हमने पढ़ा, जो डिस्टॉर्शन हो रहे हैं इसमें, उसमें देयर इज रोल ऑफ सोर्स मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क. सो अ मेमोरी प्रोब एक्टिवेट योर रिलेटेड ट्रेसेस ऑलरेडी. आपको जब कुछ प्रोब मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, वो उससे रिलेटेड आपकी जो पुरानी मेमोरी है उसको भी ट्रिगर करेंगे, जो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है,
ठीक है। अब हम कभी कभी मिक्सिंग कर देते हैं सिमिलर चीजों को अगेन। मतलब कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन में आंसर पेपर में नहीं करते हैं हम, दो सिमिलर टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देते हैं एट टाइम्स। या कभी कभी हम बताते हुए अपना कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं और वो कोई और आधी कोई कहानी होती है, आधी कहानी कोई और जुड़ जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये उस दिन तो नहीं हुआ था, ये शायद मैं गलत बता रही हूँ, उस दिन नहीं हुआ था, नहीं ये उस दिन हुआ था। एट टाइम्स वी मिक्स थिंग्स, वी मिक्स 2 or 3 इवेंट्स टुगेदर। मैम करते शायद हैं। गाना भी मिक्स कर देते हैं ना शायद, हाँ गाना तो हाँ कर है सकते ना? हैं। यस मैम। गाना हो जाता है, हाँ गाना करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे मेमोरीज का भी मिक्सिंग हो जाता है। हम सोर्स मिस एट्रीब्यूशन यहाँ पे कर देते हैं कि सोर्स में वो था, वो सिमिलर सिमिलर था, आपस में कुछ था, कनेक्शन बन रहा था, इसलिए वो ट्रिगर हो गए और वो आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये तब होता है। देन वी ऑल्सो हैव मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। दिस मिस इन्फॉर्मेशन इज अगेन जब इंफॉर्मेशन गलत दी जा रही है। Okay, this can be eliminated by systematically questioning participants in order. ये इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है जब आपसे पूछा, जब आई विटनेस से एक एक करके पूछा जाए तब क्या हुआ, फिर 11 बजे के बाद 12 बजे आप कहाँ थे, फिर क्या हुआ, क्या देखा, कैसे देखा, स्टेप बाय स्टेप अगर उनसे पूछा जाए तो हम इस इफेक्ट को रोक सकते हैं। अदरवाइज उनको रैंडमली पूछो आपने क्या देखा क्या बताया, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज नहीं करेंगे, जो समझ आएगा बताते जाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन कभी कभी गलत मिल जाती है। ठीक है। Loftus revised her views to say that eyewitness can come up to accept misleading information as time goes by. तो उनको वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। टाइम के साथ साथ मेमोरी डिस्टॉर्ट होने लगेगी, उनको कोई और आके कुछ और ऐड करेगा, अगेन गो बैक टू दैट दृश्यम मूवी, दैट विल मेक सेंस हेयर ऑल्सो। हम उनकी मेमोरी को मिसलीड ही तो कर रहे हैं उसमें, मतलब नॉट हम बट द मेन लीड एक्टर, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू मिसलीड द एक्चुअल मेमोरी, है ना। सो ओरिजिनल मेमोरी को बार बार ओवर रिटर्न करना पड़ता है, बट अगर वहां पे कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल दी जाए ओवर रिटर्न के वक्त तो वो मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। ऑल्दो दिखा गया है कि रियल लाइफ में, रियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आई विटनेस मेमोरीज इतनी डिस्टॉर्टेड नहीं होती हैं, मतलब ज्यादातर वो लोग सही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इतना भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइटी एंड वायलेंस, जैसे कि हमने वेपन फोकस इफेक्ट कल भी पढ़ा था। अगर कुछ वेपन आ गया है, कुछ बहुत थ्रेटनिंग हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, हम एंजाइटी में आ रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, तो भी हमारी मेमोरी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जनरेट होगी। स्ट्रेस में हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली पेरिफेरल एस्पेक्ट्स को हम मिस कर देते हैं, जैसा कि हमने वो वेपन फोकस इफेक्ट में पढ़ा था। ठीक है। Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Okay. We'll take a break here for 5 minutes. For 6 minutes. It's 24. ठीक है, उसके बाद थोड़ा बचा है, then we'll continue. ठीक है? Yes, ma'am.
Is everyone there? Yes, ma'am. Okay, so another thing here is photographic memory और editing memories को हम बोल सकते हैं. I guess this you know already. Photographic memory हम उसको बोलते हैं जब हमें कोई चीज बहुत डिटेल्ड में, एग्जैक्ट डिटेल में याद रहती है. ऑल्दो ये थोड़ा सा अभी तक क्वेश्चन मार्क वाला टॉपिक रहा है अमंग द रिसर्चर्स, बिकॉज रियल लाइफ में कहा जाता है कि शायद फोटोग्राफिक मेमोरी एग्जिस्ट करती भी नहीं है. बट अगेन अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ये भी देखा गया है कि बच्चों में ये मेमोरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनकी एडिटिक मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा डिटेल में चीजों को कैप्चर करते हैं, याद रख पाते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट्स. ठीक है, दैट इज एग्जैक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी. कब क्या कैसे कैसे था, पूरा जो विजुअल इमेज रहता है ना एग्जैक्ट. कभी कभी कहते हैं ना मेमोरी हमें तो बहुत एग्जैक्ट याद है अपनी, एक एक चीज हम बता सकते हैं क्या था क्या था. दैट इज काइंड ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी. Now another thing important topic here is this is the last topic of memory and forgetting, that is a neuropsychological basis of learning and memory. Though we have already studied, मतलब हम साथ के साथ already पढ़ रहे थे कब brain का कौन सा part कहाँ involved है. Still in case if we have missed anything that will be covered here, and I have directly taken pictures of my notes, ठीक है, so that it can help you एग्जाम पर्सपेक्टिव से. So when there is bilateral removal of medial temporal lobe, कौन सा लोब? मीडियल टेम्पोरल लोब का जब बायलेटरल दोनों कैंपस से दोनों हेमिस्फेयर से रिमूवल हो जाता है इन एपिलेप्टिक पेशेंट. तो ऐसा देखा गया था, वहां पे उनकी एपिलेप्सी तो क्योर हो गई. ठीक है, एपिलेप्सी का पेशेंट था, उनका मीडियल टेम्पोरल लोब रिमूव किया गया, तो वहां पे एपिलेप्सी तो क्योर हो गई, लेकिन हुआ क्या साइड इफेक्ट? इट कॉज्ड एमनीशिया. पीपल वर अनएबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, यानी कि उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन ही नहीं पा रही थी, कोई नई मेमोरीज क्रिएट नहीं हो पा रही थी. राइट? व्हाई? क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया था. ठीक है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी. और जब हिप्पोकैम्पस ही डैमेज हो गया है तो ये काम नहीं हो पा रहा था. तो इसमें क्या हुआ, जो नई मेमोरीज थी वो नहीं बन पा रही थी, एंड दैट इज आई गेस आपका एंटेरोग्रेट एमनीशिया. तो ज्यादातर जब ऐसा मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज होता है, हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटेरोग्रेट एमनीशिया होता है. ठीक है. अनदर थिंग, मीडियल टेम्पोरल लोब में कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स आते हैं? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एंटोराइनल कॉर्टेक्स, पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया एंड पेरीहेनल कॉर्टिकल एरिया. साइट ऑफ कंसोलिडेशन हम हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं. साइट ऑफ स्टोरेज, जब इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है उसको हम, वो कहां पर होती है? नियोकॉर्टेक्स. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. तो साइट ऑफ कंसोलिडेशन इज हिप्पोकैम्पस, बट साइट ऑफ स्टोरेज इज नियोकॉर्टेक्स. नाउ वंस कंसोलिडेशन इज कंप्लीट, हिप्पोकैम्पस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज और रिट्रीवल. जब एक बार कंसोलिडेशन का काम हो जाता है, मेमोरी लॉन्ग टर्म में चली गई, तब हिप्पोकैम्पस नहीं चाहिए होता है हमें. ठीक है, हमने इसके रिलेटेड थ्योरीज भी कल पढ़ी थी, याद है? एक डायग्राम भी था एंड एक दो थ्योरीज भी थी, एक स्टैंडर्ड थ्योरी, एक मल्टीपल, एक वो था मल्टीपल रेंज मल्टीपल कनेक्शन थ्योरी. रिमेम्बर? जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क से ना नेटवर्क लॉस्ट हो जाते हैं ग्रेजुअली. हिप्पोकैम्पस के साथ नेटवर्क्स बने, बाद में हिप्पोकैम्पस से लॉस्ट हो गए नेटवर्क क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चली गई मेमोरी. These are about neural networks, है ना? Yes, ma'am. Alcoholic crosswalk syndrome जो अभी हमने पढ़ा था, this we already know. Diencephalon is involved here. Diencephalon degeneration, especially the dorsomedial nucleus region, जो कि हमारे थैलेमस से associated है, and even the mammillary bodies. ये सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं in this particular
सिंड्रोम की जब हम बात कर रहे हैं. Diencephalic amnesia, damage to the midline structure of diencephalon of brain. This is caused by stroke, tumor, metabolic problems. तो जब ये भी हो रहा है तो diencephalic amnesia create हो सकता है. I hope you remember diencephalon. Alien name तो नहीं लग रहा है? नहीं मैम. ठीक है. रेट्रोग्रेड एमनीशिया, कॉर्टिकल डैमेज, यानी कि जो न्यू कॉर्टेक्स होता है जब वहां पे डैमेज होता है, ठीक है, न्यू कॉर्टेक्स रीजन जब डैमेज होता है तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया होगा, क्योंकि न्यू कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब वहां पे डैमेज हो गया है तो आप रिट्रीव कैसे करोगे इंफॉर्मेशन को, रिकॉल कैसे करोगे? दैट विल लीड टू रेट्रोग्रेड एमनीशिया. कौन से एरिया में डैमेज हो सकता है इसकी एग्जैक्टली? लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ एंटीरियर टेम्पोरल लोब. ठीक है, कौन सा टेम्पोरल लोब है ये? एंटीरियर, नॉट मीडियल. एंटोराइनल कॉर्टेक्स एंड पेरीहिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स, दीज कैन बी डैमेज. कॉजेज हो सकते हैं इसके, अल्जाइमर में ये हो सकता है, हर्ब सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस ये भी एक डिसऑर्डर है, इसमें हो सकता है, या कभी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी ये चीज हो सकती है. Then amygdala is not part of our episodic memory system. It has role in emotional memory. ये मैंने पहले भी कई बार बताया है, amygdala का रोल हमारे इमोशनल मेमोरी से एसोसिएटेड है. ठीक है, जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो विजुअल, ऑडिटरी, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में इट विल एंटर, है ना. ग्रेजुअली इट विल एंटर, हम सेंस करेंगे इंफॉर्मेशन को और वो अकॉर्डिंगली उस कॉर्टेक्स की तरफ जाएगी इंफॉर्मेशन. देन वी हैव आवर पैरा हिप्पोकैम्पल एंड पेरीराइनल एरिया. ठीक है, पैरा हिप्पोकैम्पल और पेरीराइनल एरिया के पास भी इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर वहां से इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस के पास जाएगी. हिप्पोकैम्पस में कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी होता है और कंसोलिडेशन के बाद मेमोरी नियोकॉर्टेक्स में जाके स्टोर हो जाती है. दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट. Now hippocampus working depends on surrounding cortical regions also. तो हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शनिंग है, जो उसके इर्द गिर्द कॉर्टिकल रीजन है, उस पर भी डिपेंड करता है. Thus those regions are important for memory formation. तो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए भी ये जो उसके एसोसिएटेड एरियाज है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मीडियल टेम्पोरल लोब जब डैमेज होता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रिजर्व्ड रहती है. क्या मतलब इस बात का? जब मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो कौन सा एमनीशिया होता है? अभी पढ़ा था हमने, बस अभी पिछली स्लाइड. रेट्रो. कौन सा? रेट्रो. बाबा, जब मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज हो रहा है मीडियल टेम्पोरल लोब किससे एसोसिएटेड था? कौन से फंक्शन से? कम ऑन, अभी पढ़ा है हमने ये सारा, जस्ट अभी. हमने दो पढ़े, एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड. ठीक है, मीडियल टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस एसोसिएटेड है, और जब ये डैमेज होते हैं तो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी नहीं हो पाता है, और जब कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है तो कौन सा एमनीशिया होता है? जब नई मेमोरीज नहीं बन पाती हैं तो कौन सा एमनीशिया होता है? एंटेरोग्रेड. एंटेरोग्रेड, है ना. दैट इज बिकॉज ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज, राइट. और जो अभी हमने पीछे पढ़ा रेट्रोग्रेड, वहां पे मैंने हाईलाइट भी किया था एंटीरियर टेम्पोरल लोब, यहाँ पर भी मेंशन्ड है. एंटीरियर टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तब रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है. जब मीडियल टेम्पोरल लोब में डैमेज हो रहा है तब हम कंसोलिडेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि नई मेमोरीज नहीं बना पाएंगे. ओके, अब नई मेमोरीज तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टिल
इट इज देयर, मतलब जो हमारा जो न्यू कंसोलिडेशन है, नई नई मेमोरीज क्रिएट होके लॉन्ग टर्म में नहीं जा रही है, बट वर्किंग मेमोरी काम कर रही है. It is preserved. Short-term memory is preserved because it is required in your working ना. बट कुछ नया सॉलिड मेमोरी नहीं बन रहा है जो लॉन्ग टर्म में आप भेज सको उसको. ठीक है, लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या हो रहा है, आपका लॉन्ग टर्म से रिट्रीव नहीं हो पाता है इंफॉर्मेशन. एंटीरियर टेम्पोरल लोब डैमेज होने पे, नियोकॉर्टेक्स डैमेज होने पे जो स्टोरेज है वहां से आप इंफॉर्मेशन ला नहीं पा रहे हो वापस. इसमें क्या होता है, नई इंफॉर्मेशन तो बन रही है, अभी भी मेमोरी बन रही है, न्यू मेमोरीज आप बना सकते हो, बट बस पुरानी रिट्रीव नहीं कर सकते. एंटीरियर एंड लेटरल रीजन ऑफ टेम्पोरल लोब, इसी को हम साइट ऑफ स्टोरेज भी बोलते हैं. इसी यही रिट्रीवल के लिए इंपॉर्टेंट है. यही रीजन नियोकॉर्टेक्स भी है. यही लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है. यही से रिट्रीवल होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. कौन इसको मुझे वर्बलाइज करके बताएगा दोबारा से, क्या बात हुई है अभी, दोनों का बताना. जल्दी से. एंटेरो में कौन सा डैमेज होता है, एंटेरोग्रेड में? मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज. मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज होता है. मीडियल टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शनिंग है? कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी. कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी. इसमें होता क्या है अगर डैमेज हो जाए तो? एसटीएम एलटीएम में नहीं जा पाती. हाँ, अगर ये डैमेज हो जाता है तो नई मेमोरीज क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है. राइट. नई मेमोरी जब क्रिएट होगी, जब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो गई. राइट. ठीक है, वो सब नहीं हो पा रहा है. और रेट्रोग्रेड में क्या हो रहा है? रेट्रोग्रेड में एंटीरियर टेम्पोरल लोब डैमेज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पास्ट मेमोरीज है हम उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं. रिट्रीवल में प्रॉब्लम हो रही है. राइट. अभी क्लियर है ना सबको? यस. ओके. यस मैम. हमें भी यहाँ पे रिट्रीवल स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ रही है ताकि याद रहे. मैम मतलब कि दो लोब हैं, इंटीरियर टेम्पोरल लोब और मीडियल टेम्पोरल लोब. हाँ. मीडियल इज एसोसिएटेड विद एंटेरो और इंटीरियर इज एसोसिएटेड विद रेट्रो. मैम जो पीछे नोट्स थे जहाँ पर आपने एंटीरोग्रेड एमनीसिया और रेट्रोग्रेड एमनीसिया का बताया था, उसमें लिखा था मीडियल टेम्पोरल लोब और मीडियल डायंसीफेलोन दोनों के डैमेज से. हाँ, दैट इज पॉसिबल. मेनली मीडियल टेम्पोरल लोब का नाम हम लेते हैं, हिप्पोकैम्पस का नाम हम लेते हैं, बट दीज आर एसोसिएटेड रीजन्स जो हम बात कर रहे हैं. तो वो मतलब वो बस ये है कि आपको वो नाम याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ओके मैम. देन ओके, दीज आर सर्टेन टेक्निक्स जो जनरली ये मेमोरी से रिलेटेड चीजों में करी गई है यूज. एक है पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है बायो की क्लास में. तो वहां पर थ्रू दीज इमेजिंग टेक्निक्स एंड ऑल ऐसा पता चला पीईटी स्कैन करके कि जो एनकोडिंग और रिकॉग्निशन है, ये दोनों का जो फंक्शन है ये डिफरेंट एरियाज में हो रहा है ब्रेन के. ठीक है, एनकोडिंग एंड रिकॉग्निशन. पहले हम इंफॉर्मेशन एनकोड करते हैं. इंफॉर्मेशन एनकोड जब हम करते हैं तो हमारा राइट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है. राइट हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट होता है जब हम एनकोडिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की. और हमारा लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिव होता है. लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट हिप्पोकैम्पस, ये एक्टिवेट रहते हैं एनकोडिंग के वक्त. जब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं,
जब इंफॉर्मेशन हमें रिकॉग्नाइज करनी है तब राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसका एक वो है, इसको हम बोलते हैं हीरा, दैट इज H फॉर हेमिस्फीयर, E फॉर एनकोडिंग, R फॉर रिट्रीवल, A फॉर एसिमेट्री। इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हेमिस्फीयर, एनकोडिंग, रिट्रीवल, एसिमेट्री, दैट इज हेरा और हीरा, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, एसिमेट्री है, एनकोडिंग अलग ब्रेन पार्ट कर रहा है, रिट्रीवल अलग ब्रेन पार्ट कर रहा है। एनकोडिंग के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, रिट्रीवल और रिकॉग्निशन में राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। ठीक है, एनकोडिंग में याद रखना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं एनकोडिंग के लिए, रिट्रीवल के लिए हम राइट ब्रेन यूज कर रहे हैं। सिंपल, क्लियर है ये? यस मैम। While encoding and retrieval from long-term memory, neocortical areas are most activated. ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को जब रिट्रीव करना है तो कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है ब्रेन का? नियोकॉर्टिकल एरिया। ठीक है, एपिसोडिक रिट्रीवल, जब हम एपिसोडिक रिट्रीवल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का एपिसोड्स में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब हमारा राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहता है। जब हम सिमेंटिक रिट्रीवल करते हैं, फैक्ट्स याद करते हैं कि फैक्ट्स क्या था, हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन सा है, मतलब फैक्ट, जब हम फैक्चुअल स्टफ की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो फैक्ट्स के साथ लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एपिसोड्स के साथ, ऑर्डर के साथ राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहेगा। ओके, एनकोडिंग ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट यू रिमेम्बर, जो अनकॉन्शियसली गई अंदर, ठीक है, उसको जब हम एनकोड कर रहे हैं, या जो प्रोसीजरल मेमोरी है, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, कल पढ़ा था हमने, जब उसकी एनकोडिंग की हम बात कर रहे हैं तो हमारा मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, लेफ्ट हेमिस्फीयर मोटर एरिया इन्वॉल्व है, रोस्ट्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया इन्वॉल्व है, पेराइटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड प्यूटामिन इन बेसल गैंग्लिया ये इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम रिट्रीवल की बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी को वापस रिट्रीव करना है, दैट इज ऑल्सो ऑटोनॉमिक। जैसे मैंने बोला ना, साइकिल हम चला ही लेंगे ना, चाहे हमने बचपन में चलाई हो, फिर भी अभी हम चला लेंगे, दैट इज ऑटोनॉमिक, उसका रिट्रीवल इज ऑटोनॉमिक। बट रिट्रीव करते वक्त राइट, सब कुछ राइट इन्वॉल्व है इसके अंदर, राइट हेमिस्फीयर, राइट डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट मोटर कॉर्टेक्स, राइट प्यूटामिन, राइट पेराइटो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, ऑल द राइट रीजन्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व विद रिट्रीवल। ठीक है, इट विल बी इजी आपके लिए। अगर रिकॉग्निशन और रिट्रीवल की बात हो रही है तो आप देखो हर जगह राइट ही है, राइट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है हर जगह। ठीक है, जब एनकोडिंग की बात हो रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है एनकोडिंग में, यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादातर इन्वॉल्व है, बट यहाँ पर हमने राइट पढ़ा था हिप्पोकैम्पस के वक्त बस, अदरवाइज इट इज मोर एनकोडिंग में मोस्टली लेफ्ट हेमिस्फीयर इज इन्वॉल्व। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ऑल्सो इम्प्लिसिट लर्निंग में ये देखा गया, ब्लड फ्लो इज बायलेटरल ओसिपिटल कॉर्टेक्स, bilateral occipital cortex decreased, hippocampus is not activated. Okay, perceptual priming की स्टडी थी ये, एंड implicit learning की बात हो रही है। ठीक है, प्राइमिंग यू रिमेम्बर ना, प्राइमिंग होता है जब हम किसी चीज को जैसे मैंने बोला था ना ABCD बोलते हैं तो पुरानी मेमोरी आ जाती है, D के बाद आगे EFGH आएगा। ओके, तो वो प्राइमिंग जब हम कर रहे हैं तो वो इम्प्लिसिट लर्निंग, अंदर से ऑटोनॉमिकली चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा देखा गया है, इस वक्त जब हम ये कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के वक्त हमारा हिप्पोकैम्पस एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि हम रिट्रीवल फेज में है। ठीक है, वहां हिप्पोकैम्पस का रोल नहीं है। ओके,
देन हेब्स लॉ और हेबिनियन लर्निंग किसको बोलते हैं? If synapse between two neurons is repeatedly activated, synapse you understand, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, ठीक है, वहां पे बार बार फायरिंग हो रही है, बार बार एक्टिवेट किया जा रहा है सेम टाइम पे, ठीक है, तो जो उसका जो कनेक्शन है ना दोनों न्यूरॉन्स के बीच का, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगेन वही वाली बात है, जब आप बार बार किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो या किसी एक मेमोरी को बार बार रिकॉल कर रहे हो, तो वो कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा उस मेमोरी का। या किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही कर रहे हो, तो उसका एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा। दिस इज हेब्स लॉ और हेबियन लर्निंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन भी हमने कल ही पढ़ा था। अगेन इट इज अबाउट दिस ओनली, अगेन स्ट्रेंथनिंग अबाउट द न्यूरॉन्स, रिपीटेड फायरिंग जब अब हो रही है, इंटेंस फायरिंग हो रही है, इंटेंस स्टिमुलेशन हो रहा है न्यूरल सर्किट का इन योर हिप्पोकैम्पस रीजन, तो वहां पे आपके हिप्पोकैम्पस सेल और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी न्यूरॉन्स की, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए। Again, you can say this is presynaptic neuron, this is postsynaptic neuron. These are the neurotransmitter in the synaptic region, and these are the receptors. ठीक है। अब ये दो अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, शायद पिक्चर में कलर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये रेड कलर का बनाया था, ये ब्लू कलर का रिसेप्टर बनाया था। तो these are two types of receptor. This particular type, ये जो दो ये हैं, ये नॉन NMDA रिसेप्टर है। NMDA का मतलब है N मिथाइल डी एस्पार्टेट, ये इनका केमिकल कंपोजिशन है, N मिथाइल डी एस्पार्टेट। तो ये नॉन NMDA, नॉन जो इसके नहीं बने हैं, नॉन NMDA रिसेप्टर है, और जो कुछ रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे वो कुछ NMDA रिसेप्टर है, ठीक है। जो नॉन NMDA रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के काम आते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है उसको मेंटेन करने के लिए नॉन NMDA रिसेप्टर काम आते हैं, और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसके लिए NMDA रिसेप्टर काम आते हैं। उसको प्रोड्यूस करने के लिए NMDA, उसको मेंटेन करने के लिए नॉन NMDA रिसेप्टर। ग्रेजुअली यू विल सी कि यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जाएगी न्यूरॉन्स की, यहाँ पे और ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको दिखेंगे, और वो और ज्यादा बाइंड होने लगेंगे आपके रिसेप्टर्स के पास जाके, ठीक है। नाउ जो ट्रांसमीटर्स है उसका नेचर ज्यादातर एक्साइटेटरी रहता है, तो ग्लूटामेट कैन बी यूज विच इज एन एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर हेयर, ओके। और जैसे ही ये इसको डीपोलराइज करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और डीपोलराइजेशन होगा, वैसे ही लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। नाउ देयर इज वन इनहिबिटर जो इस प्रोसेस को रोकता है, दैट इज AP5। इसका केमिकल कंपोजिशन इज 2-amino-5 फॉस्फोनोपेंटानोएट, ठीक है, 2-amino-5 फॉस्फोनोपेंटानोएट। ये क्या करता है, आपके NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। NMDA बोले तो जो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को प्रोड्यूस करते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन नहीं होगा तो आपकी मेमोरीज वहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है, और आपकी जो नॉर्मल जो स्पेशियल मेमोरी होती है वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन नहीं होता है तो, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। इज इट फाइन विद एवरीवन? हाँ यस मैम एक इसमें मतलब जो मुझे याद आ रहा है, एक रिसेप्टर जैसे NMDA हो गया, उस पे क्वेश्चन भी आता था, एक रिसेप्टर है AMPA, वो नॉन NMDA रिसेप्टर्स के उसमें ही आएगा, AMPA एम्फा रिसेप्टर। AMPA हाँ अलग है, वो नॉन NMDA होगा। हाँ जी, तो NMDA रिसेप्टर ये हो गए और नॉन NMDA में एम्फा आ जाएगा। हाँ ठीक है। ऑल्दो फंक्शनिंग सबकी अलग अलग स्पेसिफिक होती है सारे रिसेप्टर्स की। ओके मैम। तो ये यहाँ पे आपका बेसिकली सारा वो न्यूरोलॉजिकल वाला खत्म होता है। एंड दीज आर 2 थियरीज, अगेन वेरी सिंपल, ये आपको पता है, बट स्टिल आई हैव एडेड
इन केस कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई हैव रेड देयर इज वन थियोरी, अ कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, which was given by Rumelhart and Mackland, and they talked about कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है वो यूनिट्स में होती है, ठीक है, और वो यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो जो हम रीडिंग कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी हमारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इंफॉर्मेशन की। उन यूनिट्स को हम अपने न्यूरॉन्स के थ्रू एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट करके रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर। उन यूनिट्स को जोड़ जाड़ के एक पिक्चर बना के मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन मेमोरी। तो जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन मेमोरी, ये इन्होंने रूमेलहैंड और मैकक्लैंड ने दिया था। ऑल्सो इसको हम बोल रहे हैं मॉडल फॉर एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने मॉडल ऑफ एक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। अजम्पशन क्या फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो इन इंटरकनेक्टेड यूनिट सिस्टम्स में काम कर रहे हैं। यूनिट सिस्टम्स हैं जो आपस में सारी इंटरकनेक्टेड है, चाहे विजन हो, चाहे हियरिंग हो, चाहे अदर थिंग्स हो, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, अपनी ट्रेसेस छोड़ देती है, उसके बाद ग्रेजुअली अपना स्ट्रेंथ उसका चेंज होता रहता है, और फिर वो जो इंफॉर्मेशन यूनिट्स है वो आपस में इंटरेक्ट करती है टू मेक सम सेंस। And this whole concept also supports the concept of prototype learning जो हमने कल पढ़ा था क्लास में, ठीक है, जिसमें हम अपने वो बेस्ट एग्जाम्पल चिड़िया वाला और उसके थ्रू हम सब रिलेट कर लेते हैं। अगेन इट इज अबाउट यूनिट्स ऑफ लर्निंग जो हम आपस में इंटीग्रेट करके we make sense of everything. Another thing is constructive processes in memory जो कि बार्टलेट ने दिया था. This again we have discussed, but still I am just mentioning it. कि memory is a constructive process which is organized in schemas. schemas की हम बात आज भी करी थी हमने, and हमारे जो schemas होते हैं वो influence करते हैं कि हम किसी इवेंट को क्या मीनिंग देंगे. कुछ इवेंट हो रहा है, again it depends on our mental schemas, on our biases or on previous experiences. उसकी वजह से हमारा इंटरप्रिटेशन कैन वेरी, और इंटरप्रिटेशन जैसा करेंगे वैसी मेमोरी क्रिएट करेंगे. ठीक है, इज इट फाइन टू एवरीवन? यस मैम. मैम आपने नोट्स Yes, ma'am. बनाए हुए हैं? है? नोट्स कितने अच्छे से बनाए हुए हैं आपने. हाँ, एक्चुअली आई वाज स्ट्रगलिंग कि मैं इसको प्रेजेंट क्या कैसे करूं. For me it was difficult to figure out ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग में जाके ढूंढ के लाऊं बुक्स के अंदर से या गूगल करके. वो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था मेरे लिए. नोट्स से समझ में, क्रिस्पी नोट्स हैं, समझ भी आ रहा है. ये वाले नोट्स अच्छे हैं आपके. हाँ, तो फिर मेरे को यही समझ में आया लास्ट मिनट पे कि जस्ट कॉपी पेस्ट द नोट्स एग्जैक्टली, कि उससे मुझे भी क्लैरिटी रहेगी मुझे क्या बताना है, और आपको भी बहुत क्रिस्प रहेगा एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. ये हेल्प करेगा मैम. एग्जाम टाइम में ना क्रिस्प नोट्स की फटाफट देख रहे हैं, एक एक यूनिट उठा रहे हैं, तो वो हेल्प करता है. हाँ, तो दिस इज द वे. मतलब ये नोट्स मेकिंग का मेरा तरीका तो यही है एक्चुअली. मतलब दिस इज हाउ दीज आर माय नेट जेआरएफ नोट्स जो मैंने अपनी तैयारी के वक्त बनाए थे. तो वो मैम इसका ही पीडीएफ हमको भेज दीजिए ना, आपके सारे नोट्स का. मैंने पीडीएफ से बना के तो नहीं रखा है. आई जस्ट हैव माय नोटबुक विद मी. और कुछ नहीं, इसको स्कैन करके आपको बस डाल देना है, बन जाएंगे पीडीएफ मैम. ठीक है, मैं आई ट्राई अगर ऐसा पॉसिबल है. हाँ, बट एक ड्रॉबैक रहेगा मेरे नोट्स. ऐसा अभी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यू आर गेटिंग इट. अगर आप खुद पढ़ोगे तो शायद समझ में नहीं आएंगे. आपके नोट्स शॉर्टकट्स. इस तरह के नोट्स जैसे अभी क्लास में पढ़ा रहे हो, उससे हेल्प मिलेगी कि हम अपने, जैसे आप क्लास में कोई भी यूनिट करा रहे हो तो हम अपने नोट्स कैसे बनाए, या जब भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं जो आपने हमें पूरा पीडीएफ. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई क्लास में सब पढ़ाई हो रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल I guess I feel each and every student should prepare their own notes in their own handwriting and in their own language. Yes ma'am. Right ma'am. ठीक है, वो आपको ज्यादा हेल्प करता है. तो वो जो मैं क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करती हूँ, वो यहीं से आती है.
आप कितना क्लियर समझोगे उतना ही क्लियर आप लिखोगे, यस मैम। और वही आपको इजी रहेगा बाद में रिवाइज करने में। अभी मुझे आप 5 साल बाद भी पूछोगे इन नोट्स को उठा के, आई वुड बी एबल टू टेल यू इसका क्या मतलब है। यस मैम, मैंने पहले हाँ। नोट्स बनाए थे तो वो अगर कोई और उठाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं नोट्स पढ़ रही हूँ तो मैं वहां से पूरी यूनिट अपनी कवर कर सकती हूँ, वो इस तरह से नोट्स बने हुए हैं। बट कोई और पढ़ेगा तो उनको समझ नहीं आएगा कहाँ पर कौन सा टॉपिक हो रहा है, कहाँ पर क्या है। राइट तो वो बहुत जरूरी स्टेप है, मतलब वो एक्चुअली आपकी मेमोरी भी एनहांस करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिटेन रहेंगे। यस मैम। ठीक है, ओके सो दिस वाज इट, आपका मेमोरी और फॉरगेटिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है टॉपिक, एंड वी आर लेफ्ट विद लर्निंग ओनली। तो वी हैव कवर्ड ऑल अदर टॉपिक, सिर्फ लर्निंग बचा है जिसको हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। okay then see you tomorrow थैंक यू मैम। at थैंक same यू वेरी time. मच मैम। Okay, कल Thank मिलते you, हैं, ma'am. बाय, टेक केयर। टेक केयर इसलिए मैम। फॉरगेटिंग हो गई थी मैम, अब रिट्राइव होने लगा है धीरे धीरे। हाँ